Hello student, this is your computer application class and today we will discuss HTML forms and the media. So what are forms? The form tag is just another kind of HTML tag. HTML forms are used to create GUIs on web pages. Usually the purpose is to ask the user for information. इनका काम क्या होता है? यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना. द इंफॉर्मेशन इज देन सेंड बैक टू द सर्वर और इंफॉर्मेशन बाद में सर्वर तक सेंड होती है. अ फॉर्म इज एन एरिया दैट कैन कंटेन फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म एरिया ऐसा होता है जिसमें फॉर्म एलिमेंट्स को कंटेन करके रखा जाता है. द सिंटेक्स इज टैग फॉर्म पैरामीटर्स डैश फॉर्म एलिमेंट्स स्लैश फॉर्म. Form elements include buttons, checkbox, text fields, radio buttons, drop down menus, etc. क्या क्या होता है फॉर्म में? फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, बटन है, चेकबॉक्स है, टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन है और ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं. अदर काइंड्स ऑफ HTML टैग्स कैन बी मिक्स इन विद द फॉर्म एलिमेंट. और भी कई HTML टैग को हम फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं. अ फॉर्म यूजुअली कंटेन्स अ सबमिट बटन to send the information to in the form elements to the server. Submit button क्या काम करता है? सारी information को सर्वर तक सेंड करता है. The forms parameters tell JavaScript how to send the information to the server. जो फॉर्म के पैरामीटर्स हैं वो JavaScript को बताते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड करना है सर्वर तक. Forms can be used for other things such as GUI for simple programs. फॉर्म को हम GUI पे सिंपल प्रोग्राम बनाने में भी यूज़ करते हैं. Now forms and JavaScript. The JavaScript language can be used to make pages that do something. है ना, JavaScript लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि पेजेस में कुछ do something के लिए. You can use JavaScript to write complete program, but usually you just use snippets of JavaScript here and there throughout your web page. JavaScript code snippets can be attached to various forms elements. For example, you might want to check that a zip code field contains a 5-digit integer before you send the information to the server. तो JavaScript इसको ये चेक करेगा कि जो आपका zip code है वो 5 डिजिट का है कि नहीं. Microsoft sometimes calls JavaScript active scripting. HTML forms can be used without JavaScript and JavaScript can be used without HTML form, but they work well together. अगर दोनों को एक साथ यूज़ किया जाए तो बेहतरीन काम होता है. JavaScript for HTML is covered in a separate lecture. हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे. The form tag. Now the form arguments slash form tag includes form elements and probably other HTML as well. The argument to form tell what to do with the user input action. URL required है ये. Specify where to send the data when the submit button is clicked. तो URL हमको बताना पड़ता है कि जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्वर तक इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी. मेथड गेट मेथड है. फॉर्म डेटा इज सेंड एज अ URL विथ फॉर्म डेटा इन्फो अपेंडेड टू द एंड एंड कैन बी यूज ओनली इफ डेटा इज ऑल ASCII एंड नॉट मोर देन 2 कैरेक्टर्स. जो भी फॉर्म में डेटा हैं वो पहले उनको क्या करता है, चेक करता है कि वो ASCII कैरेक्टर्स हैं या नहीं हैं. उसके बाद उनको सर्वर तक सेंड करता है. मेथड कौन सी होती है? पोस्ट. Form data is sent in the body of the URL. Request cannot be bookmarked by most browser. इसको bookmark की ज़रूरत नहीं होती ब्राउज़र में. Target tells where to open the page sent as a result of the request. Target बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट पे कौन सा पेज ओपन होना चाहिए. Target equal to _ blank means open in a new window. अगर ऐसा है टारगेट स्लैश मैंने ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है, इसका मतलब नया पेज विंडो खुलेगा. टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर टॉप मीन्स यूज़ द सेम विंडो. इसका मतलब है कि सेम विंडो पे ही फॉर्म ओपन होगा.
Now input tag. Most but not all form element use the input tag with a type equal to argument to tell which kind of element it is. Type can be text, checkbox, radio, password, hidden, submit, reset, button, file or image. Other common input tag arguments include name, the name of the element, value, the value of the element used in different ways for different values of type, read only, the value cannot be changed, disabled, the user can't do anything with this element. Other arguments are defined for the input tag but have meaning only for certain values of type. The text input. A text field, input type equal to text, name equal to text field, value equal to with an initial value. देखिए एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट फील्ड विथ एन इनिशियल वैल्यू. अब मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड कैसी होती है? टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, कॉलम इक्वल टू 24, रो इक्वल टू 2, हेलो टेक्स्ट एरिया. तो अब आप देखिए एग्जाम्पल मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हेलो. पासवर्ड फील्ड बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड देना है, नेम इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड 3 और वैल्यू इक्वल टू सीक्रेट दिया हमने. तो पासवर्ड क्या हो गया? उसका सीक्रेट. तो आपको ऐसे एस्ट्रिक में दिखेगा. नोट दैट 2 ऑफ दीज यूज द इनपुट टैग बट वन यूजेस टेक्स्ट एरिया, है ना. एक ने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया, बाकी दो ने क्या यूज़ किया? इनपुट टैग यूज़ किया है. बटन्स. अ सबमिट बटन का देखिए सिंटेक्स क्या होता है? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट. सबमिट बटन के लिए टाइप, नेम और वैल्यू सबमिट डाला है. अ रीसेट बटन. रीसेट बटन क्या करता है? इनपुट टैग में टाइप रीसेट, नेम इक्वल टू सबमिट टू, वैल्यू इक्वल टू रीसेट. अब प्लेन बटन क्या करता है? टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू सबमिट 3 और वैल्यू पुश मी. ठीक है, तो पुश में लिखा रहेगा. देखिए एग्जाम्पल पहले वाले का. सबमिट बटन कैसा दिखाई देगा और क्या करेगा? सेंड डेटा करेगा. रीसेट बटन, रीसेट ऐसा दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे. रीसेट रीस्टोर ऑल फॉर्म एलिमेंट टू देयर इनिशियल स्टेट. और अब प्लेन बटन क्या करेगा? पुश मी जहाँ लिखा है ये बटन, टेक सम एक्शन एज स्पेसिफाइड बाय जावास्क्रिप्ट. जो भी आपको एक्शन लेने बोलेगा वो करेगा. नोट दैट द टाइप इज इनपुट नॉट बटन. यहाँ सारे इनपुट क्या हैं? मेथड इनपुट हैं टाइप में. चेक बॉक्सेस. चेक बॉक्सेस क्या होती है? चेक बॉक्स का सिंटेक्स होता है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इक्वल टू चेक बॉक्स एंड देन चेक टैग क्लोज. तो चेक बॉक्स में क्या होता है? टाइप हमने चेक बॉक्स लिखा. नेम क्या हो सकता है? यूज टू रेफरेंस दिस फॉर्म एलिमेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट नेम होना चाहिए. और वैल्यू क्या होगी? वैल्यू टू बी रिटर्न व्हेन एलिमेंट इज चेक्ड. नोट दैट देयर इज नो टेक्स्ट एसोसिएटेड विद द चेक बॉक्स. यू हैव टू सप्लाई टेक्स्ट इन द सराउंडिंग HTML. ठीक है, वैल्यू जो रिटर्न होगी एलिमेंट में चेक होनी चाहिए. समझ गए? नाउ रेडियो बटन. रेडियो बटन के लिए BR होता है. इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू रेडियो बटन, वैल्यू होगी माई वैल्यू 1. फिर इनपुट टाइप है रेडियो, नेम इक्वल टू रेडियो बटन, वैल्यू इक्वल टू माई वैल्यू 2. चेक्ड फीमेल. एक बार मेल है, दूसरे में फीमेल है. रेडियो बटन देखिए ऐसा दिखाई देगा जब इसकी कोडिंग करेंगे हम आपको वेब पेज पे, मेल और फीमेल. तो चेक्ड और अनचेक्ड क्या है? देखिए, है ना. चेक्ड में क्या लिखा था? फीमेल, तो वो चेक्ड है. If 2 or more radio buttons have the same name, the user can only select one of them at a time. दोनों का सेम नेम है तो लेकिन यूज़र केवल एक ही सिलेक्ट कर सकता है. If you ask for the value of that name, you will get the value specified for the selected radio button. जब हम क्या करेंगे? वैल्यू चाहेंगे उस पर्टिकुलर की, तो वो वैल्यू हमको कहाँ मिल जाएगी? रेडियो बटन से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. As with checkbox, radio button do not contain any text. चेक बॉक्स में रेडियो बटन की तरह कोई भी टेक्स्ट नहीं होता, वैल्यू होती है बस. ठीक है. ड्रॉप डाउन मेन्यू.
जैसे रेड ग्रीन कलर ये बनाए हैं ना। मेन्यू और लिस्ट कैसे बनाते हैं, मेन्यू या लिस्ट कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट नेम इक्वल टू सेलेक्ट। अब ऑप्शन आपको जितने देने हैं, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू रेड, रेड को क्लोज करके ऑप्शन दिया, फिर ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ब्लू, ब्लू ऑप्शन, और सिलेक्ट को क्लोज कर दिया। मेन्यू लिस्ट आपको इस तरह दिखेगी। एडिशनल आर्गुमेंट आप इसमें साइज भी डाल सकते हैं। द नंबर ऑफ आइटम विजिबल इन द लिस्ट डिफ़ॉल्ट इज़ 1, एक तो होनी ही चाहिए, और बाकी आपको जितनी डालनी है डाल सकते हैं। मल्टीपल, इफ सेट टू ट्रू एनी नंबर ऑफ आइटम मे बी सिलेक्टेड, डिफ़ॉल्ट इज फॉल्स, डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, और ट्रू किया तो आपको कितने भी नंबर ऑफ आइटम इसमें सेट कर सकते हैं। हिडन फील्ड्स, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, नेम इक्वल टू हिडन फील्ड, वैल्यू इक्वल टू न्या, एंड इट राइट देयर डोंट यूज सील्ड। हिडन फील्ड क्या होती है, आपको दिखाई नहीं देगी। व्हाट गुड इज दिस, क्या होगा इसमें, ऑल इनपुट फील्ड्स आर सेंड बैक टू द सर्वर इंक्लूडिंग हिडन फील्ड। This is a way to include information that the user doesn't need to see. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो केवल सर्वर के लिए होती हैं, तो हम उसको हिडन फील्ड में बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ अ हिडन फील्ड कैन बी सेट प्रोग्रामेटिकली बाय जावास्क्रिप्ट बिफोर द फॉर्म इज सबमिटेड। क्या होता है, हिडन फील्ड की वैल्यू को सेट कर दिया जाता है जावास्क्रिप्ट से, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके पहले ही सेट कर देते हैं। देखिए ये कंप्लीट प्रोग्राम है। HTML टैग ओपन हुआ, हेड ओपन हुआ, टाइटल हुआ, गेट आइडेंटिफाई, टाइटल क्लोज, मेटा HTTP इक्वलेंट इक्वल टू कंटेंट टाइप कंटेंट टेक्स्ट HTML, कैरेक्टर सेट इक्वल्स टू ISO 8899/1, हेड क्लोज हो गया, बॉडी, बॉडी स्टार्ट हुई है, पैराग्राफ में हु आर यू, और बॉर्डर क्लोज हो गया, पैराग्राफ क्लोज हो गया। फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन, पैराग्राफ नेम है। उसके बाद इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड /p। फिर नेक्स्ट आया जेंडर, उसका इनपुट टाइप हमने रेडियो बटन बनाया, नेम दिया जेंडर, वैल्यू दिया मेल, M के लिए मेल। इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू F, फीमेल के लिए। P क्लोज हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गई, और एक HTML क्लोज हो गया। क्लियर, तो इस तरह का आपको वेब पेज पे दिखेगा। हु आर यू, नेम, जेंडर मेल फीमेल। ये था आपका एग्जाम्पल। अब HTML मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, म्यूज़िक, वीडियो, मूवीज़ एंड एनिमेशन। हम HTML में ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और मूवीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। Multimedia comes in many different formats. It can be almost anything you can hear or see. मल्टीमीडिया के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप देख सकते हो और सुन सकते हो। एग्जाम्पल, पिक्चर, म्यूजिक, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म, एनिमेशन एंड मोर। नाउ मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स क्या हैं, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक साउंड और वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स। Multimedia files also have their own formats and different extension like .swf, .wav, .mp3, .mp4, .mpg, WMV and WAVI। ये आपके लिए एग्जाम्पल हैं, और आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इन सब के आपको क्या करने हैं, फुल फॉर्म बताने हैं इन फाइल्स के। HTML वीडियो में क्या होता है, बिफोर HTML5 देयर वॉज नो स्टैंडर्ड फॉर शोइंग वीडियो ऑन अ वेब पेज। पहले जो HTML के वर्जन आए थे उनमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था वीडियोस को शो करने के लिए। और बिफोर HTML5 वीडियो कुड ओनली बी प्लेड विथ अ प्लग इन लाइक फ्लैश प्लग इन हमको इंस्टॉल करना पड़ता था, तब वीडियो प्ले होते थे। Now the HTML5 video element specifies a standard way to embed a video in a web page। अब क्या हुआ, HTML5 जब आया वर्जन तो उसमें वीडियो टैग जो है वो एक स्टैंडर्ड रास्ता है जिसमें हम वीडियो को वेब पेज में एम्बेडेड करते हैं। उसका देखिए फॉर्मेट ये है, द HTML वीडियो एलिमेंट टू शो अ वीडियो इन HTML यूज़ द वीडियो एलिमेंट। वीडियो की हमने विड्थ बोली 320, हाइट बोली 240,
controls. Now source src equal to movie.mp4, type equal to video/mp4, then video tag close. इससे क्या होगा, जो वीडियो है वो आपके वेब पेज में इंक्लूड हो जाएगा इतनी हाइट और इतनी विड्थ पे. Now how it works? The control attributes adds video controls like play, pause and volume. It is a good idea to always include width and height attributes. Multiple source tag element can link to different video files. The browser will use the first recognized format. Now HTML video autoplay. कई बार क्या होता है, वीडियो अपने आप चलने लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा. तो टू स्टार्ट अ वीडियो ऑटोमेटिकली यूज़ द ऑटो प्ले एट्रीब्यूट. ऑटो प्ले एट्रीब्यूट होता है, उसके लिए देखिए वीडियो टैग ओपन किया, विड्थ इक्वल टू 320, हाइट इक्वल टू 240, ऑटो प्ले. सोर्स src इक्वल टू movie.mp4, टाइप इक्वल टू video/mp4. सोर्स src इक्वल टू movie.og, टाइप इक्वल टू video/og. योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग. और अगर ये नहीं है तो क्या करेगा, एक मैसेज दे देगा कि ये आपका ब्राउज़र इस वीडियो टैग को सपोर्ट नहीं कर रहा है. अब ऑडियो के लिए क्या है, HTML5 प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल्स. एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है ऑडियो फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए. बिफोर HTML5 देयर वॉज नो स्टैंडर्ड फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल्स ऑन अ वेब पेज. पहले कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं किया था HTML में जिसमें हम ऑडियो फाइल्स को इंसर्ट कर सकें. बिफोर HTML5 ऑडियो फाइल्स कुड ओनली बी प्लेड विथ अ प्लगइन लाइक फ्लैश. प्लगइन यूज़ करना पड़ता था ऑडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए. द HTML5 ऑडियो एलिमेंट स्पेसिफाइज अ स्टैंडर्ड वे टू एम्बेडेड ऑडियो इन अ वेब पेज. स्टैंडर्ड फॉर्मेट देता है जिससे हम ऑडियो को इंसर्ट करते हैं वेब पेज में. देखिए कैसे. HTML audio tag element. To play an audio file in HTML use the audio tag element. देखिए इसका एग्जाम्पल ऑडियो कंट्रोल्स. हम पहले ऑडियो कंट्रोल्स ओपन करेंगे. सोर्स src इक्वल टू host.org, टाइप audio/org. सोर्स src इक्वल टू host.mp3, टाइप इक्वल टू audio/mpeg. ये उसके फॉर्मेट है ऑडियो की. योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट. ये दो फॉर्मेट में अगर नहीं है OGG, MP3 और MPEG, तो उसके बाद क्या होगा, वो आपका ब्राउज़र जो सपोर्ट नहीं करता, ये मैसेज आ जाएगा आपकी वेब पेज पे. हाउ इट वर्क्स. द कंट्रोल एट्रीब्यूट एड्स ऑडियो कंट्रोल लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम. Multiple source elements can link to different audio files. The browser will use the first recognized format. आप मल्टीपल सोर्स भी ले सकते हैं और जो ब्राउज़र पहला मिलेगा उसको चेक कर लेगा. द एम्बेडेड एलिमेंट. द एम्बेडेड एलिमेंट इज सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउज़र. द EMBED element also defines an embedded object within a HTML document. Web browsers have supported the embed element for a long time. However, it has not been a part of HTML specification before HTML5. HTML में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन अब HTML5 में embedded object जुड़ गया है. इसके लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल embedded with 400, height 50, src bookmark.swf. embedded width equal to 100%, height equal to 50 पिक्सल, src इक्वल टू snap.html. नाउ एम्बेडेड सोर्स क्या है, audi.jpeg. फाइल आ गई आपकी, HTML वो आ गया और swf, तीनों चीज़ें आ गई. ठीक है. थैंक यू फॉर दिस क्लास. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ HTML. बाय. थैंक यू.